Today we will discuss the new topic, that is Stokes theorem. This theorem is also important for finding integration, that is line integral or a surface integral. Okay. Now the statement of Stokes theorem. Stokes is the name of scientist. Statement of this theorem. Statement: the surface integral of the normal component of the curl of the vector point function f bar taken over an open surface bounded by the closed curve C, bounded by the closed curve C, capital C, is equal to the line integral of the tangential component of the tangential component of f bar taken around the curve C. This is statement. Now look on the board. The statement of Stokes theorem. The surface integral, we know that the surface integral in last lecture हमने देखा है वो, the surface integral of normal component of the curl of vector point function. उसका मीनिंग क्या है? The curl of vector point function उसका मीनिंग क्या है? curl of उसका मीनिंग क्या है? डेल क्रॉस f बार. The curl of vector point function उसका मीनिंग क्या है? डेल क्रॉस f बार. ओके. The curl of vector point function f bar. Okay. Over the taken over an open surface S bounded by the curve C is equal to the line integral of tangential component of f bar taken around the curve C. This is your line integral is equal to the line integral of tangential component of f bar. ये हमने देखा है in line integral, correct. The surface integral of normal component वो क्या है? This is double integral, correct. Double integration over the surface, yes, जो कल हमने डिस्कस किया है. Of the curl, किसका? Of the curl of vector point function, that is del cross f bar, correct, is equal to line integral of the tangential component of f bar taken around the curve C, correct. That is देखो तो क्या जाएगा? That is this is surface integral of normal component of the curve C. तो यहाँ पे क्या जाएगा? डबल इंटीग्रल ओवर सरफेस यस, डबल इंटीग्रल ओवर सरफेस यस, करेक्ट. द कर्ल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ बार, तो उसका मीनिंग क्या है? कर्ल ऑफ, दिस इज द डेल क्रॉस एफ बार,
कर्ल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ बार, करेक्ट, डेल क्रॉस एफ बार डॉट एन कैप इंटू डी एस इज इक्वल टू, दिस इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ किसका है, कर्ल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ बार इज इक्वल टू द लाइन इंटीग्रल ऑफ द टेंजेंशियल कंपोनेंट, दिस इज लाइन इंटीग्रल ओवर द कर्व सी एफ बार डॉट डी आर बार, ये हमने देखा है इन लाइन इंटीग्रल। ओके, तो दिस इज योर स्टेटमेंट। ओके, दिस थ्योरम गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन सरफेस इंटीग्रल एंड लाइन इंटीग्रल। ओके, सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ बार इज इक्वल टू द लाइन इंटीग्रल ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट, करेक्ट। तो दिस इज योर स्टेटमेंट ऑफ स्टोक्स थ्योरम, द डबल इंटीग्रल ओवर सरफेस एस डेल क्रॉस एफ बार डॉट इन कैप इंटू डी एस इज इक्वल टू single integral over the curve C f bar dot dr bar. This is your statement. Okay, now we will discuss examples on that topic. Okay, examples on that topic. Now example first, first example, evaluate example first, evaluate double integral over the surface S, double integral over the surface S del cross f bar dot n cap into ds, where S is the curved surface of the paraboloid, curved surface of the paraboloid x square plus y square is equal to 2z, bounded by the plane z is equal to 2, where f bar is equal to 3 in bracket x minus y into I plus 2xz into j plus xyk. Okay, now look on the board. This is your example. We have to find answer of this. Evaluate double integral over the surface S del cross f bar dot n cap. Okay, where S is the curved surface of the paraboloid. Yes, here S is curved surface of the paraboloid. This is paraboloid. X square plus y square is equal to 2z. Bounded by the plane क्या है यहाँ पे, z is equal to 2 and f is given. Okay, now we will find answer of this by using Stokes theorem. Okay, now here in answer here f bar is equal to, f bar क्या दिया है, 3 in bracket x minus y into I plus 2xz j plus xyk. This is your given, correct. Now we have to find answer of this double integral. For finding this, first we have to find del cross f bar. Therefore del cross f bar is equal to, in determinant first रो क्या आता है I, second j and k, यहाँ पे dou by dou x, dou by dou y and dou by dou z. Here
F1 हाँ आई का, हाँ यहाँ पे क्या है F1 3 x माइनस वाई, F2 क्या है 2xz, दिस इज 2xz एंड k का कोएफिशिएंट xy, k का कोएफिशिएंट xy। नाउ सॉल्व दिस, ये हमने सॉल्व किया है लास्ट में भी, पहले देखा है वो, तो क्या जाएगा i इन ब्रैकेट डो बाय डो वाई ऑफ दैट, डो बाय डो वाई ऑफ दिस, तो क्या जाएगा यहाँ पे, आई विल राइट हियर डो बाय डो वाई ऑफ एक्स वाई माइनस डो बाय डो एक्स ऑफ 2xz, करेक्ट, माइनस j इन ब्रैकेट फॉर j क्या जाएगा डो बाय डो एक्स ऑफ एक्स वाई, दिस इज डो बाय डो एक्स ऑफ एक्स वाई माइनस डो बाय डो z ऑफ दिस, डो बाय डो z ऑफ 3 इन ब्रैकेट x माइनस वाई, करेक्ट, प्लस k इन ब्रैकेट डो बाय डो एक्स ऑफ दिस, डो बाय डो एक्स ऑफ दिस, तो क्या जाएगा डो बाय डो एक्स ऑफ 2xz माइनस डो बाय डो वाई ऑफ दैट, डो बाय डो वाई ऑफ, यहाँ पे क्या बचेगा 3 इन ब्रैकेट x माइनस वाई, करेक्ट, दिस इज योर फार्मूला। नाउ डिफरेंशिएट दिस पार्शियली, वी गेट दिस इज डेल क्रॉस एफ बार इज इक्वल टू, डेल क्रॉस एफ बार इज इक्वल टू आई इन ब्रैकेट आई बार इन ब्रैकेट क्या जाएगा यहाँ पे डो बाई डो वाई, उसका एक्स वाई का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, क्या बचेगा ये एक्स माइनस डो बाई डो एक्स ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का क्या जाएगा 1, तो क्या बचेगा 2z माइनस j इन ब्रैकेट डो बाई डो एक्स, उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, क्या बचेगा यहाँ पे y विथ रिस्पेक्ट टू दिस इज y माइनस डो बाई डो z, यहाँ पे क्या जाएगा 0, तो यहाँ पे क्या जाएगा y प्लस k इन ब्रैकेट, यहाँ पे क्या बचेगा विथ रिस्पेक्ट टू x क्या जाएगा 2z माइनस विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू y क्या बचेगा यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या जाएगा x का 0 विथ रिस्पेक्ट टू y, उसका जाएगा -1, -1 इंटू 3 तो क्या जाएगा -3 इंटू माइनस तो क्या जाएगा +3, दिस इज योर डेल क्रॉस एफ बार। फर्स्ट फाइंड डेल क्रॉस एफ बार, ओके, आफ्टर दैट फर्स्ट टारगेट फाइंड डेल क्रॉस एफ बार। अभी आपके पास डेल क्रॉस एफ बार है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन कैप, फाइंड वैल्यू ऑफ एन कैप, आफ्टर दैट वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ एन कैप, तो क्या जाएगा एन कैप, हियर द कर्व सरफेस इज पैराबोलॉइड, हियर कर्व सरफेस क्या दिया है पैराबोलॉइड, हियर कर्व सरफेस is paraboloid, x square plus y square is equal to 2z, x square plus y square is equal to 2z, and this bounded by the plane z is equal to 2, bounded by the plane z is equal to 2, तो पुट z is equal to 2 in that, तो क्या मिलेगा, दिस implies पुट z is equal to 2, we get x square plus y square is equal to z2 आ गया, तो क्या जाएगा 4, which is वो क्या है, which is x square plus y square is equal to 4, वो क्या है, which is circle in xy plane, which is circle in xy plane, correct. Now this belongs to in xy plane, in xy plane n cap is, therefore this implies n cap क्या मिलेगा k, and dx क्या जाएगा dx dy, okay, x square plus y square is equal to 4, correct, this is circle in xy plane, तो n cap क्या जाएगा k, because this k is perpendicular to x and y, ओके, एंड ds is dx dy। नाउ अब आपके पास n कैप भी मिला है, देन वी विल फाइंड
डेल क्रॉस एफ बार डॉट एन कैप, देयरफॉर डेल क्रॉस एफ बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डेल क्रॉस एफ बार क्या है, दिस इज वैल्यू ऑफ डेल क्रॉस एफ बार, दिस इज आई x माइनस 2z माइनस j y प्लस k 2z प्लस 3, दिस इज वैल्यू, करेक्ट। डॉट विथ डॉट, डॉट क्या है k, n कैप क्या है k, तो क्या जाएगा डॉट प्रोडक्ट, i डॉट k 0, करेक्ट, i डॉट j 0, देन हाँ देखो यहाँ पे i डॉट k क्या जाएगा 0, देन j डॉट k क्या जाएगा 0, देन k डॉट k क्या जाएगा 1, k डॉट k 1, अदरवाइज 0। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या है 2z प्लस 3, यहाँ पे क्या है 1, तो क्या जाएगा दिस इज 2z प्लस 3, दिस इज 2z प्लस 3, बट z की वैल्यू क्या है, z इज 2, z की वैल्यू क्या है 2, पुट कर दो यहाँ पे z इज इक्वल टू 2, क्या मिलेगा 4 प्लस 3, दिस इज 7, वी गेट दिस अप टू दिस, करेक्ट। Now, therefore, the double integral over S del cross F bar dot n cap into ds is equal to क्या जाएगा, write all the values, double integral over S, then the value of del cross F bar dot n cap, उसकी वैल्यू क्या है 7 into ds, but ds क्या है dx dy, करेक्ट। बट हियर यस क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, विच इज सर्कल, नाउ दिस इज एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 7 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, क्या जाएगा दिस इज 7 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल क्यों आ गया, बिकॉज यस क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, विच इज सर्कल, यहाँ पे 7 इज कॉन्स्टेंट, टेक आउटसाइड, तो क्या मिलेगा dx dy, दिस इज एरिया ऑफ द सर्कल एंड एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। बट यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, रेडियस क्या है, यहाँ पे r इज 2, रिप्लेस r स्क्वायर बाय 4, तो क्या मिलेगा 4 इंटू 7, दिस इज 28 पाई एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या किया है, इवैल्यूएट दिस double integral over S del cross f bar dot n cap into ds, where S is the curved surface of the paraboloid, x square plus y square is equal to 2z and bounded by the plane z is equal to 2। तो फर्स्ट टारगेट क्या है, फर्स्ट फाइंड वैल्यू ऑफ दिस del cross f bar, फर्स्ट फाइंड वैल्यू ऑफ del cross f bar, देन आफ्टर दैट सी दी सरफेस, यहाँ पे सरफेस क्या है, दिस इज curved surface of the paraboloid and the plane z is equal to 2, then replace value of z is equal to 2, we get circle in xy plane, now अभी आपके पास डेल क्रॉस एफ बार है, देन फाइंड एन कैप, यहाँ पे एन कैप क्या जाएगा k, बिकॉज दिस बिलोंग्स टू एक्स वाई प्लेन, फॉर एक्स वाई प्लेन नॉर्मल इज जेड प्लेन एंड अलॉन्ग जेड प्लेन k इज यूनिट वेक्टर, करेक्ट, फॉर दिस पर्पज एन कैप इज k एंड ds इज dx dy, देन फाइंड डेल क्रॉस एफ बार डॉट एन कैप, तो यहाँ पे i डॉट k क्या जाएगा 0, देन j डॉट k क्या जाएगा 0, देन k डॉट k क्या मिलेगा 1, तो वी गेट 2z प्लस 3, बट z इज 2, z की वैल्यू क्या है 2, तो पुट z इज इक्वल टू 2 हियर, वी गेट 7। नाउ यूज दिस फार्मूला, पुट ऑल दिस वैल्यू, यहाँ पे क्या मिला है कांस्टेंट 7, टेक आउटसाइड, डबल इंटीग्रल ओवर द सरफेस एच dx dy इज नथिंग बट एरिया ऑफ दैट सरफेस, बट हियर सरफेस इज सर्कल, देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, but here r square is equal to 4, replace r square, we get 28 pi. This is example on Stokes theorem. Okay, now next example second, example second on surface integral, that is the Stokes theorem. Evaluate double integral over the surface S del cross f bar
डॉट डी एस, यहाँ पे एन कैप नहीं है बट एन कैप यहाँ पे आता ही है, दिखता नहीं, वेयर एफ बार इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू आई माइनस एक्स वाई जेड जे प्लस वाई क्यूब के and S is the surface of and S is the surface of x square plus 4y square plus z square minus 2x is equal to 4 above the plane x is equal to 0. Above the plane x is equal to 0. Now here same question है, evaluate double integral over the surface S del cross f bar dot ds where this is your f bar and S important है and S is the surface of x square plus 4y square plus z square minus 2x is equal to 4 above the plane x is equal to 0. Correct. Now solution, here f bar is x cube minus y cube I minus x y z j plus y cube k. Correct. This is your f bar. Now we will find answer of this by using Stokes theorem. Okay. तो by using Stokes theorem उसका आंसर क्या मिलेगा? Use Stokes theorem. क्या है Stokes theorem? डबल इंटीग्रल ओवर द सरफेस S डेल क्रॉस f बार डॉट n कैप इंटू ds इज इक्वल टू this is your surface integral. Correct. This is formula of Stokes theorem. The surface integral converted into line integral. We will find answer of this question by using line integral. We get the surface integral. Okay. Suppose this is your equation first or equation star. Okay. Now here f bar is x cube minus y cube into I, or I will write this f bar directly. Put f bar is this x cube minus y cube I minus x y z j plus y cube k. Correct. Then find f bar dot dr bar. Therefore f बार डॉट डी आर बार इज इक्वल टू, तो क्या जाएगा वो हमने फाइंड किया है बहुत बार इन लाइन इंटीग्रल एक्स क्यूब आई माइनस एक्स वाई जेड जे प्लस वाई क्यूब के. करेक्ट. डॉट डी आर बार, तो डी आर बार का फॉर्मूला क्या है? आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड. करेक्ट. दिस इज फार्मूला ऑफ डी आर बार. करेक्ट. नाउ फाइंड दी डॉट प्रोडक्ट. आई डॉट आई क्या मिलेगा? 1. तो यहाँ पे क्या है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डी एक्स. तो क्या जाएगा? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डी एक्स. करेक्ट. नाउ जे डॉट जे 1. तो यहाँ पे क्या जाएगा? माइनस दिस. करेक्ट. माइनस एक्स वाई जेड इंटू डी वाई. इधर यहाँ पे के डॉट के 1. तो क्या जाएगा? वाई क्यूब डी जेड. करेक्ट. But the given surface S is, this is your given surface. Here S is x square plus 4y square plus z square minus 2x is equal to 4. Correct. And x is equal to 0. x क्या है? 0. And
x is equal to 0, we get, therefore put x is equal to 0 in that, we get, therefore the given surface is, or we get, पुट x इज इक्वल टू 0, x 0 आ गया तो क्या मिलेगा 4y स्क्वायर, यहाँ पे प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जाएगा 4, एंड दिस इज डिवाइड बाय 4, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड डिवाइड बाय 4 टू होल इक्वेशन, तो क्या जाएगा y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू क्या जाएगा 1, तो वो क्या है विच इज पैराबोला, विच इज पैराबोला, और इलिप्स विच इज इलिप्स, विच इज इलिप्स, which is ellipse, which is ellipse. Okay, now by using equation star we have to find f bar dot dr bar, we get same answer. Okay, therefore integral over c f bar dot dr bar is equal to integral over c. Now in f bar put x is equal to 0, x की वैल्यू क्या है 0, put x is equal to 0 here, we get this is 0, dx is 0, this is also 0, we get y cube dz, we get y cube dz. क्या क्या है यहाँ पे, put x is equal to 0, dx क्या रहेगा 0, correct. Now this is capital C is parabola, therefore the parametric equation of parabola, therefore parametric equation of parabola, sorry ellipse, parametric equation of ellipse, parametric equation of ellipse क्या जाएगा पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स, हाँ y इज इक्वल टू क्या जाएगा r cos थीटा, करेक्ट, y इज इक्वल टू r cos थीटा, r इज 1, यहाँ पे r क्या है 1, y इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा, डिवाइड में क्या है 1 है उसके, एंड z क्या मिलेगा यहाँ पे क्या है 4, उसका रूट 2, तो क्या जाएगा 2 sin थीटा, आल्सो dz क्या मिलेगा उसका डिफरेंशिएशन 2 cos थीटा इंटू डी थीटा, करेक्ट, z इज 2 sin थीटा, तो dz क्या मिलेगा 2 cos थीटा इंटू डी थीटा, देयरफॉर वी गेट दिस इज f bar dot dr bar इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर सी, वैल्यू ऑफ y की वैल्यू क्या है cos क्यूब थीटा इंटू dz की वैल्यू क्या है इंटू 2 इंटू cos ऑफ थीटा इंटू डी थीटा, पुट ऑल दिस वैल्यू इन दैट, वी गेट दिस इज 2 इंटू इंटीग्रल दिस लिमिट इज 0 to 2 पाई, लिमिट ऑफ पैराबोला, लास्ट लिमिट ऑफ इलिप्स लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, इन लाइन इंटीग्रल इलिप्स का लिमिट क्या आता है 0 to 2 पाई, cos क्यूब इंटू cos, दिस इज cos रेज टू 4 थीटा इंटू डी थीटा. Okay, now by using reduction formula, this 0 to 2 pi can be written as 4 times 0 to pi by 2. 0 to 2 pi लास्ट लेक्चर में देखा था वो भी, 0 to 2 pi can be written as 0 to 4 times 0 to pi by 2 इंटू cos रेज टू 4 थीटा इंटू डी थीटा बाय यूजिंग रिडक्शन फार्मूला. यहाँ पे क्या किया है 0 to 2 pi, वी हैव टू फाइंड आंसर ऑफ 0 to 2 pi इज नथिंग बट 4 times 0 to pi by 2. नाउ यूज हियर रिडक्शन फार्मूला, वी गेट 2 इंटू 4 इंटू, तो यहाँ पे क्या है पावर 4, 1 से कम कर दो क्या जाएगा 3 डिवाइड बाय 4 इंटू, अभी 2 से कम कर दो 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 2 2, लास्ट में 1/2 है तो मल्टीप्लाई में पाई बाई 2, वी गेट आंसर. एंड आंसर हाँ कैंसिल विद दिस, यहाँ पे 4 4 कैंसिल होगा, यहाँ पे 2 2 कैंसिल होगा, तो आंसर क्या जाएगा 3 पाई डिवाइड बाई 2, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. ओके, हियर we have to find or we have to solve this question by using Stokes theorem. Okay, we have to find answer of this del cross f bar, but del cross f bar is nothing but by using Stokes theorem this is line integral f bar dot dr bar. Here we have to solve this question by using f bar dot dr bar. For this purpose, first write f bar, then f bar dot dr bar. After that, see the surface S, then put x is equal to 0. We get equation of ellipse. Okay, now put x is equal to 0 here also, we get this y cube into dz, but here C is the surface of ellipse. Now by using parametric equation of ellipse, put
वाई इज इक्वल टू, हाँ यहाँ पे क्या जाएगा, वाई इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड जेड इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। यहाँ पे डिवाइड में क्या है 4, फॉर दिस पर्पज 2, ऑल्सो डी जेड इज 2 कॉस थीटा डी थीटा। पुट ऑल दिस वैल्यू, then the limit of ellipse is 0 to 2 pi, and this 0 to 2 pi can be converted into 4 times 0 to pi by 2. Okay, this is all about the Stokes theorem.